Uh, Good evening, folks. Once again, I am in front of you, Colonel VD Singh, with certain interesting things to talk with you about common singing mistakes. Whenever you are singing, whether you are a bathroom singer or a professional singer, uh, uh, to err is human, and we all make mistakes. But there are certain mistakes which are avoidable, which you can, over a period of time, overcome and become a better singer. Ultimately, every individual wants to sing. सो जब हम गाने की बात करें तो उसमें अपना बेहतरीन सिंगिंग स्किल क्यों ना बाहर निकाल के लाएं. वी डोंट हैव टू एम एट बिकमिंग प्लेबैक सिंगर और प्रोफेशनल सिंगर. लेकिन आप जो एक नॉर्मल सिंगिंग करना चाहते हैं उसमें हम क्या किस किस्म की मिस्टेक हो जाती हैं. सो टुडे वी विल जस्ट टेक ए ग्लांस. Making a couple of mistakes as a hobby singer doesn't mean that you are a bad singer. It simply means that your voice is still a work in progress. Singing mistakes are not always about technique, posture, or singing in tune. There are a lot of things that impact your voice as a singer, and you might even know. But something as unrelated to singing like diet, जो आप खाते पीते हैं, for example, can play a big role in how you sound. As soon as you clean up your diet, you'll notice significant improvements in your voice, or vice versa also. कई बार ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं उसके बाद गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड इन लूज टर्म्स में बोलते हैं भारीपन लग रहा है बिकॉज बेल्चिंग हो रही है और सम काइंड ऑफ फ्लैटुलेंस और वट एवर some kind of difficulty is experienced when you're singing. When you are singing and when you're talking, they're two different things. Because when you're talking, it is mostly kind of a monotone. But जब हम गा रहे हैं, so your mind is focused. आप गा रहे हैं, there's some a small amount of stress and strain is there. And whatever you eat, it does affect that. ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन होता है ऐसा. Now, my sincere advice is that as a singer, you should avoid foods and drinks that dehydrate you, constrict your vocal cords, and make your body produce extra mucus. So I'm talking like a doctor, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है ये. Dairy products and coffee products, they tend to make your body, overproduce mucus. Spicy and salty food will dehydrate you and alter your voice. आपने देखा होगा कि जब गला सूख जाता है तो एक डिफरेंट टाइप की आवाज आती है, which is generally experienced, in early hours of the morning. Sometimes that kind of a dehydrated voice is very, very useful for singing because it brings in a certain amount of crack in your voice. बिल्कुल सुबह सुबह हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं जब, there are a number of recordings which have been made by Jagjit Singh साहब, और मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आ रहा है in which he categorically mentioned about this कि ये गज़ल या ये चीज़ मैंने सुबह 4 बजे उठ के गाई. क्यों? बिकॉज नॉट बिकॉज वो सुबह की राग के ऊपर था वो, लेकिन उस गाने की जो डिमांड थी वो उस किस्म की वॉइस थी. सो द वे यू स्पीक और यू सिंग, उससे पता लग जाए कि आप थके हुए हैं या नहीं थके हुए हैं. इन एडिशन टू दिस, द टेम्परेचर ऑफ फूड एंड ड्रिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Too hot will damage your vocal cords and too cold will constrict your vocal cords. हमारे जो खाना पीना है, अगर हम रेगुलरली गा रहे हैं, you have to you have to focus on what you drink and what you eat. बहुत जरूरी है ये. तो सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, that is not being consistent. Most common mistake. बिकॉज कंसिस्टेंसीज देखिए, अगर आपने गाने का शौक है तो प्लीज स्पेंड सम टाइम कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं कि महीने में खाली एक ही बार गा लिया. द प्रॉब्लम इज दैट लॉट ऑफ सिंगर्स प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूजुअली ओनली व्हेन दे आर इन मूड. सम ऑफ देम विल गो फॉर many months without practicing and then wonders after years of practicing they are still not getting better. तो इसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए. Roughly speaking, about 90 days or so, about 3 months, and sing, every alternate day or something. And then you feel, because when you practice your vocal cords, you get better. क्योंकि आपके जो vocal cords हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना जरूरी है. वो randomly नहीं जा सकता है इधर उधर. मिस्टेक नंबर 2 जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, that is bad posture. Most singers simply don't know how important their posture is. The way you position your body
will directly impact how you sound. This is why most of the singers are singing while standing up and not sitting down. You will notice, in all these reality shows, singers जो है बैठ के नहीं गाते हैं, खड़े होके गाते हैं. Because our body has been engineered like that. आपका गला, your vertebral column, everything should be in same line. This allows an easy breathing, inhaling and exhaling. The diaphragm and your lungs, they play a very, very big role. So, if you have a correct singing posture, आपको बहुत आराम से गाने को मिलेगा. You don't have to stress yourself, which is a very, common sense वाली बात है ये. एक और मिस्टेक हम करते हैं, that is bad breathing technique. Breathing is a pillar of singing. Without it, your talent doesn't really matter. एक तो थकी आवाज की बात मैं कर रहा था, लेकिन यह है कि ये जो ब्रीदिंग टेक्निक अगर आपने ठीक नहीं रखी, तो you can never become a good singer. And the good news is that it's very, very easy to learn a good breathing technique. And you should learn it as soon as possible, and this will be the foundation of your voice. There are established singers who will say that they don't use any particular breathing technique. Please don't believe them. ऐसा कभी नहीं हो सकता है. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ. If you want to be a good singer, please produce power in your voice. आपका जो थ्रो है वॉइस का, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए. So that if there is no microphone, even then, you can address a gathering of 40 or 50 people just without any microphone, without any PA system. वो आपकी आवाज में थ्रो होना चाहिए. अगर आपकी आवाज में थ्रो है तो आप सॉफ्टली भी गा सकते हैं और तेज भी गा सकते हैं. बट इफ यू डोंट हैव थ्रो इन योर वॉइस बिकॉज ऑफ बैड ब्रीदिंग टेक्निक, देन यू आर नॉट अ गुड सिंगर. आप गा ही नहीं पाएंगे, और गाएंगे भी तो उस गाने के अंदर वो जज्बात पैदा नहीं कर पाएंगे जो होने चाहिए. So breathing technique is very, very important. The easiest breathing technique is inhale and exhale deeply, जो हम बाबा रामदेव का रोज सुबह 8:30 बजे देखते हैं. So बैठे बैठे भी, before your recording starts, even if you are recording on Star Maker, trust me, 2 या 3 मिनट निकालिए आप. You just inhale and exhale deeply. This basically gets you in a meditative kind of a posture. सीधे तो बैठ के गाना है या खड़े होके गाना है, but when you inhale and exhale deliberately, you are basically making yourself ready for better singing. So breathing technique बहुत जरूरी है. And for those who smoke, they have to be a little cautious before singing. No smoking or no drinking. ये बहुत जरूरी है, otherwise it spoils your vocal cords. Another mistake which make, using too many H. When I say H, it means ऐसी sound. Now imagine कोई गाने के अंदर एक इफेक्ट पैदा करना चाह रहा है, and and you're unnecessarily adding that sound of H in almost every word. This sounds extremely strange, and कई केसेस भी तो कहते हैं singer doesn't come to know because वो habitual हो गया उसको गाने का. I'll just give you an example. एक लाइन में गाता हूं जिसमें मैं एच का जबरदस्त इस्तेमाल करूंगा. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ये जो वाली आती है, अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दिस बेसिकली स्पॉइल्स. बहुत से लोग करते हैं ये. मोस्ट ऑफ देम दे डू इट बिकॉज दे डोंट हैव फुल कंट्रोल ऑन द वॉइस, एंड ये एच को बार बार ऐड करने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ इसमें वजन बढ़ जाएगा. प्लीज ट्रस्ट मी, वजन नहीं बढ़ेगा, आपको स्टूडियो से बाहर निकाल दिया जाएगा. एच को कैसे ऐड करते हैं, मतलब व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से एच को ऐड करते हैं? यस मैम, एच को ऐड करने का मतलब, हाँ मैम, कोई भी हमने गाना गाया, यू सी वी ऑलवेज ट्राई टू पुट सम एक्सेंचुएट करना चाहते हैं किसी चीज को. 2 हिस्से होते हैं उसके. आपने मीना मैम बहुत अच्छी बात पूछी. 2 हिस्से, एक तो है आपका प्रोनाउंसिएशन. समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल एक्सेंट नहीं है हम उससे बदल के गाने लगते हैं. जैसे अंग्रेजी है, वी वांट टू सिंग लाइक एन अमेरिकन, वी कैन नेवर डू दैट. यू कैन रोल योर टंग, बट वो आपका इंग्लिश आएगा, वो आपका वो रिसीव प्रोनाउंसिएशन जैसी अंग्रेजी आना मुश्किल है, अनलेस यू हैव बीन इनटू इट. सिमिलरली जब आप गा रहे हैं तो गाने में जो स्ट्रेस हम डालते हैं, you're basically emphasizing, so वो ओवर एम्फेटिक हो जाता है बाय यूजिंग लेटर एच एट द एंड ऑफ ईच लाइन. ये ऐसे करके साउंड आती है, जैसे मैंने आपको गा के बताया ना. एग्जांपल अभी मैंने गा के बताया आपको मैम.
वापस करो, लेट कुछ मी सी। अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कहना के बाद हल्का सा ब्रीथिंग अच्छा, सी आवाज आई ना, हाँ, एच, ठीक है, इसकी ओके बात कर रहा हूं ओके, मैं। अंडरस्टूड ये अंडरस्टूड। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गाने का सत्यानाश कर देता है। राइट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके The ओके, next mistake which we make is loud singing. Uh, या this problem, yeah, this comes when the singer is trying to hit higher notes. Loud singing कब हो जाती है? जब बहुत आप higher note गाना जा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम भी raise हो जाता है. This sounds very awful. But then some singers don't know how to sing higher notes correctly, and they're actually thinking that they are hitting the higher notes correctly. उसको हम बोलते हैं कर्कश आवाज. वो कोशिश कर रहे हैं. See, loud singing doesn't make your song better. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि जब भी आप गाने की बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर सिंगिंग रेंज। हमारी जो सिंगिंग रेंज है रफली वो 3 भागों में होती है, ठीक है? उसमें इट साउंड समथिंग लाइक, जैसे सायरन होता है, ओ, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एब्डोमेन, लोअर नोट, उसके बाद मिडिल वाला यहाँ पर आता है, और जिसको हम हेड वॉइस बोलते हैं वो यहाँ पर होती है। यू विल फील द वाइब्रेशन, यू सी, यू विल फील। तो अगर आप अपने मुंह से ही सायरन की आवाज शुरू करें, ओ, आप देखिए, आपको पता लग जाएगा आपकी रेंज कितनी है गाने की। बहुत देसी तरीका बता रहा हूं मैं आपको ये। सो दिस इज काइंड ऑफ रेंज जिसमें आप आराम कर सकते हैं। एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग इट एफर्टलेसली बिकॉज मुझे अपनी सिंगिंग, मुझे अपनी रेंज पता है। अननेसेसरीली लाउड सिंगिंग से आपका गाना अच्छा नहीं बनता है। You see, when you're singing loud, you are adding more decibels to the voice, और आप माइक का कबाड़ा कर देंगे गा के। राइट, ओके, If you can't control that, then there are number of things है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे हाई नोट हिट हो रहा है तो आप स्लाइटली दूर हो जाइए। माइक्रोफोन और जो सिंगर के बीच में आइडियल जो ऑप्टिमल डिस्टेंस होता है वो होता है फ्रॉम 2 इंचेस टू 6 इंचेस। नेवर किस अ माइक्रोफोन। कई लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे करके करते हैं, राइट, ये चीज नहीं है। 2 इंचेस टू 6 इंचेस, ओके, ये आइडियल इसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम माइक्रोफोन। एंड व्हेन यू फील दैट यू हैव टू हिट अ हाई नोट, आप थोड़ा सा मुंह को इधर कर लीजिए, किनारे कर लीजिए तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, फिर वापस आ जाइए। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड व्हेनेवर यू सी अ स्टेज परफॉर्मेंस ऑन टीवी, प्लीज फोकस ऑन द वे सिंगर इज होल्डिंग अ माइक, और उस माइक को कैसे हिला रहा है या हिला रही है। जो प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, आपको अपने पता लग जाएगा कि क्या चीज है ये। इफ द माइक्रोफोन इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड, बूम स्टैंड के ऊपर, तो वो सिंगर अपने आप को थोड़ा सा पीछे करेगा या थोड़ा सा आगे भी ले आएगा बीच बीच में। बहुत सटल डिफरेंस होता है ये, लेकिन वो अब आपको पता, वैसे आप एज ए नॉर्मल व्यूअर देखेंगे आपको नहीं महसूस होगा। बट सिंस आई एम नॉट टेलिंग यू द टेक्निकलिटीज अबाउट दिस, समबडी इज हिटिंग अ हायर नोट, तो वो थोड़ा सा अपने मुंह को या तो ऊपर कर लेगा। अब देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई मूव माय लिप्स अवे फ्रॉम दिस लाइक दिस, suddenly there is a drop in the level. राइट, And when I come back, I'm again facing this. तो राइट, अगर मैं बहुत जोर से कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस पे कर रहा हूँ, तो वो आवाज फट जाएगी, रिकॉर्डिंग बहुत खराब हो जाएगी। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, improper singing of higher notes. Most singers struggle to sing high notes, but not everybody will be able to sing them correctly, even if they take voice lessons. If you have been struggling to sing high notes for a couple of years already, then the odds of improving are fairly slim. Now, there are plenty of singers who made it big. They avoid singing high notes. The problem with singing high notes is that you must sing them correctly. Otherwise, मत गाइए आप उसको। ये मतलब ये वही बात है कि आप हमेशा अटेम्प्ट कर रहे हैं लता जी के गाने। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सिंगर का हम नाम लेते हैं, लता जी, किशोर, ये लोग पैदा होके ख़त्म हो गए। ये कोई दूसरा आदमी किशोर नहीं बन सकता है, कोई दूसरा लेडी सिंगर लता नहीं बन सकती। सबकी अपनी अपनी रेंज है। दीज सिंगर्स वर वेरी वेरी फेमस एंड वर्सटाइल, रफ़ी साहब ऑल्सो इंक्लूडेड, because they had a very wide kind of singing range, इसलिए अलग अलग मूड के गाने गा लेते थे। The same thing perhaps was not applicable to तलत महमूद and कुंदनलाल सहगल। वो ज़माना डिफरेंट था, और उस किस्म की वैरायटी भी नहीं बनती थी।
लेकिन ये जो हाई नोट पे जब हम गाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई बार बेसुरा हो जाए. यू सी, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि यू आर ट्राइंग टू सिंग हाई नोट और आपका वॉल्यूम भी बहुत हाई हो रहा है और आप उसको क्रैक कर रहे हैं. इसी के अंदर जो एक और इम्प्रॉपर सिंगिंग होती है, यू आर टेकिंग हायर नोट्स लेकिन आपका सही नोट लग ही नहीं पा रहा है. सो व्हाई सिंग ऑन हाई नोट? You select your range in such a way that your higher note comes out very, very naturally without, being too loud. This is a very abstract matter. ये आप जब गाएंगे तभी आपको पता लगेगा. Another mistake which made is bad passaggio technique. Passaggio means passage. When you switch from one of your voices to other. मैंने आपको बताया ना कि एक तो वॉइस है बहुत लो, जैसे मैं अभी गया, तो मैंने एक पूरा पूरा ऑक्टेव ऊपर चला गया मैं. सो देयर इज डेलिकेट बैलेंस विच यू हैव टू मेक विद योर वॉइसेस. सो जब आप वॉइस को के बीच में स्विच ओवर कर रहे हैं, you have to be very very conscious about your switching of passage, कि आप लोअर से मिडिल में जा रहे हैं, मिडिल से हायर नोट में जा रहे हैं, और उतने बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसमें बेसुरे हो जाता है. नो, उस ट्रांजिशन में बेसुरे होने का मतलब ये हुआ कि वॉट एवर इंटरमीडिएट नोट्स यू आर गिविंग इन बिटवीन दिस टू नोट्स, they have to be practiced very well. आप कई गानों में देखेंगे कि that is not a mathematics के लोअर नोट से जंप करके हायर नोट पे आ गए. There is always something in between जिसको हम मुड़कियाँ बोलते हैं. हिंदी म्यूजिक के अंदर उनको बोलते हैं मुड़की. This you will only come to know once you get into the nitty-gritties of singing. And this particular thing is known as passaggio. You're switching your voice from one level to different level. मतलब ये chest voice आपकी हो गई या head voice हो गई. So low to high. And उसमें एक thumb rule मैंने आपको बता दिया. Always remember siren. If you can produce the sound of a siren easily, you will be able to recognize your own singing range. And never try to copy a singer. हर एक सिंगर का वो होता है. अगर आप बाई चांस उसके पिच में गाना भी शुरू कर देंगे, if you are lucky enough, तो आप अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाएंगे. You have to remember that you are an individual who is not Kishore Kumar or not Lata Mangeshkar. You have your own your nuances of singing. आपका गाने का एक टेम्परामेंट है, हर चीज अफेक्ट करती है. सो उस हिसाब से हमको करना है. Another mistake singers make is not warming up. Whenever you go to a gym, आप पहले वार्मिंग अप करते हो कि नहीं जिम के अंदर अपने मसल्स के लिए? यू डोंट स्टार्ट पंपिंग वेट्स राइट इन द बिगनिंग. आप थोड़ा सा रनिंग अराउंड करते हैं, स्पॉट रनिंग करते हैं, यू फ्लेक्स योर मसल्स अ बिट. So the same thing is applicable here also. So when you don't warm up your vocal cords, you will injure them, and this injury is more or less permanent. कई लोगों की आवाज़ में आप देखते हैं खराश हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आप कहते हैं ना, ये लगता है इसने तंबाकू खाया कई साल तक. ऐसा नहीं है. उस बेचारे की वोकल कॉर्ड जो हैं, दे हैव बीन डैमेज्ड because one reason is physiological, the other one is कि उसने अपनी आवाज़ ख़राब कर दी. बिकॉज आप वो गाने के पहले कभी प्रैक्टिस यानी उसने वार्मिंग अप किया नहीं. व्हेन यू से वार्मिंग अप से आप कोई भी अगर गाने जा रहे हैं तो उसके पहले आप थोड़ा सा उसकी सरगम को गुनगुनाएं. ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप गाना गा रहे हैं, गाने को बिना प्रैक्टिस के और गाने को वार्मिंग अप के बाद गा रहे हैं. मैंने ऐसे वार्मिंग अप आप कुछ नहीं करिए, उस गाने का स्केल लीजिए और उसमें उसके आप सरगम खाली बोलिए. सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा. ये मैंने वार्मिंग अप करी अभी गाने के पहले. यही होती है वार्मिंग अप. सो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ वार्मिंग अप, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ बीइंग इन द जिम. आप थोड़ी वार्मिंग अप करते हैं, देन योर एक्सरसाइज इट गिव्स यू मोर प्लेजर. गाने में भी आपको एफर्टलेसली गाना लगेगा अगर आपने ठीक से वार्म अप किया अपनी वोकल कॉर्ड्स को. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सिंगिंग ऑफ पिच. मजे की बात है कि कई सिंगर जो है पूरे पूरे गाने को ऑफ पिच में गा लेते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ताली नहीं बज रही इसमें, पता नहीं क्या बात है. थोड़ी देर के बाद ताली की जगह उनके ऊपर अंडे और टमाटर आते हैं, तब उनको पता लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने. रियाज नहीं करते. रियाज नहीं करते.
हाँ, सो इसी को हम बोलते हैं सिंगिंग ऑफ पिच. सो ये इसको हम पिची सिंगिंग भी बोलते हैं. इट यूजुअली हैपेंस, यू हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम सिंगिंग, और उसके बाद आप उसको गाने की पूरी भरसक पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप गा नहीं पा रहे हैं. सो दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक विच अ सिंगर कैन डू. एंड आपको जो गाना है उसको सही पिच में, व्हेन वी से पिच, आपके साथ जो साजिंदे हैं, जो आपके साथ एकम्पनी कर रहे हैं, योर वॉइस, योर स्केल, हर चीज को, इट इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग. द फ्रीक्वेंसी हैज टू मैच. अदरवाइज आप पूरा पूरा गाना, कहते हैं ना, पूरा गाना बेसुरा गा दिया, गाया तो, लेकिन पूरा गाना बेसुरा गा दिया. यू मे नॉट अचीव अ परफेक्ट पिच, बट ट्राई नॉट टू स्ट्रे अवे फ्रॉम द सॉन्ग्स पिच. बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. थोड़ा बहुत होता है, उसको हमारे जो हिंदुस्तानी गायकी में श्रुति बोलते हैं, श्रुति. तो 22 श्रुतियां होती हैं एक ऑक्टेव के अंदर. मैं एक्चुअली ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ. मैं आज भी इस चीज़ को मान के चलता हूँ, आई नो नथिंग अबाउट म्यूजिक, क्योंकि मेरी कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई इसके अंदर. आई हैव मोस्टली इनहेरिटेड दिस थिंग्स फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम माई लेट मदर. शी वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड. तो ये मुझे इनहेरिटेंस है, जिसके बदौलत मैं आज हिम्मत कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने बातचीत करने की. वाह। तो ऑफ पिच में नहीं गाना चाहिए. अगर आप गा रहे हैं, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए इससे पहले कि लोग कुर्सियां छोड़ के भाग जाए. Singing out of tune. This is by far one of the most common mistakes, which is made by singers. चाहे वो जितना भी अच्छा सिंगर हो, लेकिन ये इस सिंगिंग को हम ठीक कर सकते हैं. देखिए, एक पिचिंग और सिंगिंग आउट ऑफ ट्यून, ये दो अलग अलग चीजें हैं. पिचिंग में क्या है कि आपका ऑर्केस्ट्रा यहाँ चल रहा है थ्रू आउट, और आप उससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है या थोड़ा सा नीचे चल रहा है. आउट ऑफ ट्यून का मतलब यह है कि आप बेसुरे हैं, आउट ऑफ ट्यून. सो दैट ओनली कम्स बाय प्रैक्टिस. कई लोग होते हैं वो, और यू ट्राई टू अटेम्प्ट अ सॉन्ग विच इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब आपने एक बाथरूम सिंगर हैं और स्ट्रेट अवे आप जो हैं एक क्लासिकल बेस कोई गाना शुरू कर देते हैं, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाएगा, ये बेवकूफ़ी कही जाएगी. बिकॉज you'll be messing up with the song. बहुत ज़रूरी है कि जो हम गाने को गाएं तो उसकी ट्यून अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए. और जब मैं आप लोगों को एक अलग से सेशन लूंगा अबाउट ट्रेनिंग योर वॉइस, उसमें मैं बताऊंगा इसके निटिग्रीज के बारे में. सिंगिंग आउटसाइड योर वोकल रेंज, ये ठीक वही वाली बात है कि आप उस हाई पिच पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके वोकल रेंज के वो बाहर है. सो कई लोग होते हैं, कई सॉन्ग दे सिंगर्स होते हैं, दे पिकअप अ सॉन्ग आउटसाइड देयर वोकल रेंज, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ ऑफ पिच भी होते हैं, फिर ऑफ ट्यून भी हो जाते हैं. सो वोकल रेंज आपको आइडेंटिफाई करनी है, और फिर उसी के अंदर अंदर आपको रहना है. नॉट प्रैक्टिसिंग करेक्टली, बिल्कुल कॉमन चीज है ये. आप चाहे जिमिंग करते हो, चाहे कुछ करते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप अच्छा कभी नहीं गा सकते हैं, क्योंकि उस गाने की जो बारीकियां हैं, मैंने बताया ना, ट्रांजिशन फ्रॉम चेस्ट वॉइस टू हेड वॉइस, वो ट्रांजिशन सब ये प्रैक्टिस से आएगा. ये ऐसे नहीं कि आपने एक बार सुन लिया और उसके बाद हम गा दिया. ये आप तब कर सकते हैं वंस यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ डेक्सटेरिटी इन सिंगिंग, एंड देन यू कैन डू दिस. सो उसके लिए बड़े रियलिस्टिक होना चाहिए कि भाई इतना इतना है, मैं रोज आई कैन डिवोट 30 minutes. यू डोंट हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन सिंगिंग. प्लीज, दिस सिंगिंग शुड बी अ प्लेजर. आपके एक खाली टाइम में एक आपको हल्का दिमाग को हल्का करता है, लेकिन आधे घंटे 45 मिनट तो लगाना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट ऑफ कोर्स. Another mistake which people make, singers make, is not opening your mouth wide enough while singing. आपने देखा होगा कई जो उस्ताद लोग होते हैं जिनको तंबाकू वाले पान की आदत पड़ जाती है. मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. उनको वो कुछ फाइब्रोसिस और सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मुंह खोले नहीं पाता उनको. वो पूरा गाना गा जाते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मौन व्रत में है. अब जैसे गाने की एक मैं लाइन आपको सुनाता हूँ, मुंह बंद करके. या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो. मैंने मुंह खोला ही नहीं इसमें. थोड़ी देर के बाद लोग बोर होके चले जाएंगे, दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू. व्हेन यू आर सिंगिंग, यू हैव टू ओपन योर माउथ वाइड. उसमें अब आपको ये नहीं सोचा कि मैंने मुंह ज़्यादा खोला तो मतलब मेरे अंदर के सारे दांत दिख जाएंगे, आज ठीक से मैंने मंजन नहीं किया है. ऐसा कुछ नहीं है.
When you are singing, you have to open your mouth wide, ताकि जो शब्द आप बोल रहे हैं, because whatever you are speaking, it is by way of synchronizing your teeth, your tongue, lip movement, इन सब से मिलके जो syllables हैं वो निकल रहे हैं. आप अगर मुंह बंद करके कहेंगे because you are conscious कि कोई देख ना ले ज़्यादा, you will be messing up. So you have to open your mouth wide enough while singing to make things clear. They're audible very very clearly. आप मुंह बंद करके बात करेंगे नहीं होगा. हैविंग ए बैड डाइट, ये भी एक मिस्टेक का पार्ट है, जो जैसे मैं आपको शुरुआत में मैंने जिक्र किया था. डाइट ऑफ अ सिंगर इज नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम एवरेज पर्सन. ऐसा नहीं कि सिंगर कोई बहुत स्पेशल कुछ चीज़ खा रहा है, लेकिन आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी. समथिंग विच डजंट डिहाइड्रेट यू, you know, and something which doesn't produce gas, because when you're singing and you're belching in between, that looks very bad. So one has to focus on that. एंड इसका एक थंब रूल ये होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ. गाने के पहले कीप अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर बाय योर साइड, नाइदर हॉट नॉर आइसी कोल्ड. दिस रियली हेल्प्स टू कीप योर थ्रोट वेट. वो होना बहुत ज़रूरी है, बट हैज़ टू बी ओनली वाटर, नथिंग एल्स. नॉट गेटिंग एनफ रेस्ट. जब आप गाना गा रहे हैं तो रेस्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर आपको रेस्ट नहीं है, आपका कल सुबह रिकॉर्डिंग है और रात के 1 या 2 बजे तक आप डिस्को थीक के अंदर डांस करके और चिल्ला विल्ला के आ रहे हैं, तो अगले दिन आप क्या करेंगे? यू विल हैव ए वेरी रास्पी वॉइस. आपकी आवाज़ क्रैक होगी गाते वक्त, आप गा नहीं सकते. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड इन टर्म्स ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स. आपकी वोकल कॉर्ड्स जो है वो एट रेस्ट होनी चाहिए, तभी आप ठीक से गा पाएंगे. आप अगर, एंड इसमें जाहिर सी बात है कि एक अनडिस्टर्ब्ड स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस. जब हम रिकॉर्डिंग करने की सोचते हैं तो गाने की. नॉट यूजिंग योर डायफ्राम फॉर सिंगिंग. डायफ्राम, वी ऑल हैव डायफ्राम समवेयर हियर, चेस्ट के अंदर. बिगेस्ट मिस्टेक होती है, बिकॉज ये जो बिगनर्स होते हैं इनको ठीक से डायफ्राम के पता नहीं होता इसके बारे में. डायफ्राम इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, और यही डायफ्राम डैमेज होता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. कई बार हम कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ इंजेस्ट कर लेते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है. कई लोगों की डायफ्राम जो है परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं. सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग दैट. जब हम बोलते हैं हम ये पेट से आवाज़ निकलनी चाहिए, दैट एक्चुअली मीन्स कि आप डायफ्राम का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं. खुल के गाना, खुल के बोलना, एंड दिस एड्स थ्रो इन योर वॉइस. If you don't have throw in your voice, you can never make it effective. Forcing yourself too much. This is another mistake. For some reason, some singers think that the more they force themselves, the better they will be. आपने देखो कि people start contorting their face. गाते वक्त बहुत ऐसा लगता है कि या तो पेट खराब हो गया उनका, या उनको बहुत दुख हो रहा है, या बड़ी तकलीफ हो रही है अंदर से, दिल की आवाज़ उनकी मतलब निकल नहीं पा रही है, तो इस तरीके से. सो ये कोई वो थोड़ा ना क्या बॉडी बिल्डिंग दिखा रहे हो उसके अंदर आप. सो डोंट फोर्स योरसेल्फ. एंड हर एक चीज़ अगर आप देखिए, ये सारी चीज़ें दे अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू recognizing your own singing range. You don't have to sort of force too much. Not taking care of your vocal cords. Many singers, they don't take care of vocal cords. Not just the beginners, but even established singers do that. So taking care of vocal cords मीन्स जो कुछ मैंने सारी चीज़ें बताई उसको समराइज कर देती है ये वो. नॉट टेकिंग केयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स. आपने अपनी वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट नहीं दिया. आप गाने वाले हैं, उसके पहले आपने बिल्कुल चिल्ड लेमनेड पी लिया कुछ, या बहुत ही गर्म चाय पी ली. ये सारी चीज़ें. एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वोकल कॉर्ड जस्ट लाइक यू टेक केयर ऑफ योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Not going to auditions. Whenever you have to perform somewhere, obviously you have to audition your voice. So उसमें लोग क्या करते हैं, दे आजकल तो खैर यूट्यूब वगैरह, सो दे अपलोड देयर वीडियोस सिंगिंग और सब करके हैं. उसके बाद सोचते हैं कि शायद कोई ना कोई इनको पहचान ही लेगा. द ट्रूथ इज दैट if you want to be a good singer, you have to go after success and not wait and hope to get lucky. तो आप अगर गा रहे हैं और अच्छा रीजनेबली गुड गा रहे हैं, तभी आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, that you can always approach people who like these kind of things and become a part of that, and then probably they can take your services paid or unpaid or whatever.
So this is very important. People shy away from auditions कि वो क्या कहेगा. अगर आपको आना है इस प्लेटफॉर्म पे, सिंगिंग प्लेटफॉर्म पे, तो never shy away from the auditions. But last and not the least is bad attitude. Bad attitude is not only applicable to day-to-day life, even singing also. आपने देखा होगा कई एक singers होते हैं, because of their attitude, they are thrown out. They are thrown out of the studio. ये मुंबई वगैरह में बहुत होता है. I know couple of such characters who have shown attitude, and ultimately there was a huge loss. उनको booking बंद हो गई. If you are a good singer, be humble. And and that is liked also. You have a good personality, good confidence, but if your personal behavior is bad, and you suddenly start thinking कि मैं तो ये बन गया हूँ. अभी आज से करीब मोहम्मद रफ़ी साहब 1980 जुलाई में गए थे. उनके जाने के 4-5 साल के बाद एक सिंगर था, प्लेबैक सिंगर. He made an announcement, and I was quite surprised. Because at that time I was a student, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और मेरा अपना ग्रुप भी था लखनऊ में. And that particular playback singer, he made a public announcement कि now finally I am the replacement of Rafi, और रिकॉर्डिंग पर लेट पहुंच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. Within no time he was thrown out, and आज के ज़माने में उसको कोई नहीं जानता है. He is living, but living in oblivion. कोई नहीं पूछता. So your attitude is very, very important. And in conclusion, I want to see, as you can see, there are a lot of mistakes that you, as a singer, you can make. Some directly impact your voice, while others indirectly impact your voice. जैसे कि भी मैंने attitude के बारे में बताया. Mistakes are a part of your life. You do mistakes, 1 or 2. लेकिन वो उसके बाद अगर mistakes करेंगे तो वो गुनाह है. और फिर you can never become a good singer. So with this last point, I come to the end of this session, and I invite any kind of questions or कोई doubt अगर आपके दिमाग में है about singing. Karan Saab, you have given such a wonderful point by point mistakes, which I had to do a lot of soul searching also. It helped actually to do a lot of soul searching. Thank you. यदि आपने वो H के बारे में बोला ना, तो मुझे एक गजल याद आई. जी उसकी जी. हाय मर जाएंगे हम, लुट जाएंगे. आप जाने फरीदा खानम, सईदा, हाँ, फरीदा खानम आए भर की जाएंगे आज जाने की जिद न आज करो. जाने की जिद न करो. हाँ, यही है. अब देखिए, इसमें अगर आप कोशिश करेंगे कि जिद ना करो, जो करो वर्ड है, उस करो के आगे एच का कोई रोल ही नहीं है. तो हम उसको एम्फेसाइज करेंगे, तो करो को आप करो में जो ओ वाला पार्ट है उसका आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, बट आप उसमें एच नहीं जोड़ सकते. नहीं, I was talking about the H in the high and hum, because जो मैंने ओरिजिनल सुना है, जी वो जो हाई है ना, हाँ, वो सचमुच उससे हाई निकलती है. बिल्कुल वो वर्ड है मैम. दैट इज एन एक्सप्रेशन. एब्सोल्युटली राइट. तो मैं बात कर रहा हूँ मैम, ये एच, यूजिंग एच एज अ टेल एंड जो होता है गाने का, उसमें एच का इस्तेमाल हमें नहीं करना है अनलेस. So I know that I love that ghazal, and I have tried singing it to myself a number of times. जी. हम तो मर जाएंगे, आए लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. ये गाना बहुत अच्छा एग्जांपल है मैम, ये देखने का कि आपकी सिंगिंग रेंज कितनी जा सकती है. आज जाने की जिद ना करो इज अ चेस्ट वॉइस, और उसके बाद जो अंतरा होता है वो आपके हेड वॉइस होती है, हायर हो जाती है. सो आपको अकॉर्डिंगली देखना. दिस इज अ रिलेटिव रेंज. ये फरीदा खानम जी जो है, वो उनके नेचुरल वॉइस ही जो है वो लो उस पे है, यानी है ना.
जरूरी नहीं है कि हम अपनी आवाज उसके साथ मैच कराएं, हमको ये हाँ जरूरी है कि हम अपनी रेंज देख लें क्या है, जिसमें कि उस रेंज के अंदर वो हेड वॉइस इंक्लूड हो जाए और चेस्ट वॉइस भी इंक्लूड हो जाए। आज जाने की जिद ना करो, ये चेस्ट वॉइस आ गई। यूं और ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। बड़ी ठहराव वाली गजल है ये, बहुत ठहराव वाली गजल है, हाँ और हाँ गा सकते हैं आप अगर इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखें।